Assalamu alaikum dear students. Welcome again to my channel Generation Z Mathematics. Today we are going to start Pure Mathematics P3. This paper has total marks 75. Amount of time is 1 hour 50 minutes. And the number of questions in this paper will be 11 to 12, same like P1. So first of all, we discuss about the syllabus contents. Here we have chapter 1 is algebra, chapter 2 is logarithms, chapter 3 is trigonometry. This is the extension of the trigonometry which we studied in AS level. Differentiation, again this is also the extension of the differentiation. In AS level we studied only the differentiation of the algebraic functions. In P3 we will study the differentiation of trigonometric functions, exponential functions, logarithmic functions, their products and their divisions. Integration, then chapter 5, which also includes the same functions like trigonometry, exponential functions, logarithmic functions, or inverse trigonometric functions like tan inverse x. Then chapter 6 is differential equations, or then chapter 7 is numerical solution of equations. The complex numbers, or finally chapter 9 is vectors in 3D. So let's start with chapter number 1, algebra. Algebra has different contents like, first of all, binomial series, then polynomial up to degree 4, long division, synthetic division, remainder or factor theorem, partial fractions, or at the end modulus functions, equations, inequalities, or their graphs. So let's start with the first topic, that is what binomial series. हमने एस लेवल में binomial theorem डिस्कस किया था, and the binomial theorem was a plus b to raise power n, where we studied n is any positive integer, तो एस लेवल में जो आपने बाइनॉमियल थ्योरम पढ़ा, तो सिर्फ यहाँ पर जो हमारे पास a प्लस बी की पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज थी. अब की बार हम जब बाइनॉमियल सीरीज में जा रहे हैं तो मैथमेटिक्स सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को एड्रेस नहीं करता. मैथमेटिक्स जो है वो कंप्लीट स्टडी है फॉर ऑल द नंबर्स, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, इवन फ्रैक्शंस और डेसिमल्स एज वेल. तो जब हम बाइनॉमियल सीरीज़ की बात करेंगे, दैट इज़ व्हाट, तो हमारे पास अब की बार जो हमारे पास पावर होएगी n, ये हमारे पास जो है होगी, दैट विल बी व्हाट, n इज़ नाउ any real number. That could be positive, negative या फ्रैक्शन, पॉजिटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव फ्रैक्शन. अब पावर कुछ भी हो सकती है.
तो एक बात तो ये होगी, इसमें ये कंडीशन होगी कि हमारे पास n अब जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है। नंबर 2, हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म इज़ एनी नंबर और वेरिएबल एज वेल, बट अनलाइक दैट यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होगी दैट मस्ट बी 1, फर्स्ट टर्म मस्ट बी 1। और अगर ये 1 नहीं होगी तो हम 1 बनाएंगे। तो हमारे पास ये इसका जो है वो फार्मूला है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट। इसकी जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। Then next term will be n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 over 4 factorial or x raised to power what 4, or it goes up to infinity. So this will be the formula for the binomial series, that is called what, expansion up to some certain terms। वो आपको बताएगा कि जी आप पर्टिकुलर वेरिएबल तक आप इसको एक्सपैंड करें या पर्टिकुलर टर्म तक आपको इसको एक्सपैंड करें। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन होगा, किस तरह से क्वेश्चन होएगा, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टर्म मस्ट बी 1, और अगर 1 नहीं होगी तो हम उसको 1 बनाएंगे। This is what question number 1. For example, question is, this is the A part. Like, कहता है expand one minus 3x raised to power minus 2 up to x cube. This is the question 1. तो इसमें हम देखेंगे कि इसकी फर्स्ट टर्म 1 है, लिहाजा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास पावर इसकी n है, दैट इज़ व्हाट माइनस 2। तो हमारे पास जो फार्मूला हमारे पास हमने पढ़ा है ये एक्सपेंशन का, ये तो हम इस पर जो है वो लगा देंगे 1 प्लस एन एक्स, n इज़ व्हाट माइनस 2 और x इज़ व्हाट माइनस 3x। 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर x जो हमारे पास है वो हमारे पास x जो है ये सारा x है अलॉन्ग विद साइन, दिस इज व्हाट x। देन नेक्स्ट टर्म इज व्हाट n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल माइनस 3x x raised to power what cube। तो 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें कि दिस इज़ द सिंबल फॉर फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कैलकुलेटर पर आपके ऐसे आती है, एस में भी आपने ऐसे पढ़ा है, बट वी कैन राइट द फैक्टोरियल लाइक दिस एज वेल। तो ये भी फैक्टोरियल का साइन होता है।
जब हम फार्मूला में वैल्यूज़ फिट कर देंगे तो देन टाइम टू सिंप्लीफाई। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास 1 एज इट इज़, फिर उसके बाद हम जो है ना सबसे पहले जो है वो इसका प्लस माइनस डिसाइड करेंगे। जैसे ये हमारे पास 2 माइनस हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास ओवरऑल मल्टीप्लाई हो करके क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 3 2 6x। अब ये 2 जो है इस 2 से हम काट देंगे। अब ये -3x² है तो इसका हम स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 9x²। ये माइनस जो है वो इस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, और फिर इसके पीछे हमारे पास ये -3 है और इससे पीछे हमारे पास ये एक -1 बचेगा, ये जब 2 2 से कट जाएगा तो फिर अगेन यहाँ पर 2 माइनस हैं तो माइनस माइनस प्लस हम इसको कर देंगे, तो दैट इज़ व्हाट 9 3 27x²। फिर हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ टर्म हमारे पास बेसिकली ये 3 इस 3 से कट जाएगा, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, एक माइनस यहाँ से बचेगा, एक माइनस यहाँ से बचेगा, और ये हमारे पास -4, और ये जब हम क्यूब लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -27x⁻³ लाइक दिस। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये जो है ना वो 4 माइनस है, तो 4 माइनस का मतलब क्या होगा कि ये अगेन दैट विल बी व्हाट प्लस, और 27 को हम 4 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट इज़ व्हाट 108x³। तो ये हमारे पास जो है वो उसकी एक्सपेंशन आ जाएगी अप टू x³। दैट विल बी द सिंपल केस कि जब आप पास ऑलरेडी फर्स्ट टर्म जो है वो 1 हो। दिस इज पार्ट ए। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर एग्जाम्पल। लाइक हमारे पास जैसे यूँ हो 4/1 - 2x और इसका स्क्वायर रूट है। कहते हैं एक्सपैंड अप टू x³। तो एक बात तो ये ध्यान में रहे कि वी विल नेवर एक्सपैंड इन द डिनोमिनेटर। हम इसको हमेशा न्यूमरेटर में लेकर के आप इसकी एक्सपेंशन करेंगे। तो जब हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 - 2x और रेज टू पावर इज़ व्हाट +1/2 है, तो ये ऊपर जा कर के -1/2 हो जाएगी। तो ये फर्स्ट टर्म ऑलरेडी 1 है, लिहाजा कुछ आपको एक्स्ट्रा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 जो बाहर है इसको आप एज इट इज़ लगाएंगे और इस पर लगा देंगे फार्मूला 1 + nx। n इज़ व्हाट -1/2 और x इज़ व्हाट -2x। फिर हमारे पास है जी +n इंटू n-1 over 2 factorial means 2 into 1 into x². Then we will have the third term as well. That is what plus n into n-1 n-2 into x², 2x³। Then we will make further simplification. 4 is same 1। अब ये हमारे पास 2 इस 2 से कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस x। इसको अगर आप मेंटल मैथ्स करेंगे तो दैट विल बी वेरी गुड। आपका एक तो मैथ्स बेहतर होगा, दूसरा आपके पास जो है वो
आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बेहतर होगा 4x²। और ये 2 इंटू 1 जो है ये भी डिनोमिनेटर में है, तो इसको आप 1/2 लगा दोगे। अब ये 4 जो है 2 टू द 4 इस 4 से कट जाएगा। 2 माइनस हैं, 1 माइनस, 2 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, दैट इज़ व्हाट 3/2 x²। देन अगेन हम इस पर आते हैं, दिस इज़ व्हाट ये ओवर 3 फैक्टोरियल है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1/2। इसके ऊपर लिख लें आप -3/2, -1/2 -2 इज व्हाट -5/2, और 2x का क्यूब हो जाएगा -8x³ डिवाइडेड बाय 3 टू द 6, ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये 3 जो है वो इसको हम काट देंगे, तो 3 टू द 6। अब यहाँ पर अगेन हमारे पास जो है वो क्या है 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। इज इट ओके? अब ये 8 है, 2 टू द 4 टू द 8, तो ये 8 इस 8 से कट जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा ऊपर 5 बचेगा और नीचे हमारे पास जो है वो 2 बचेगा। तो हम इसको जो है वो +5/2 x³, ये हम इसको जो है वो ऐसे एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई कर देंगे। फिर ये जो बाहर 4 है हम इसको जो है वो अंदर अप्लाई कर देंगे। 4 + 4x + 2 टू द 4 3 टू द 6x² + 2 टू द 4 5 द 10x³। तो दिस विल बी व्हाट द फाइनल फॉर्म। तो इसमें सबसे ज़्यादा डेडिकेसी यही है कि यहाँ पे आपने प्लस माइनस का ख्याल रखना है। जब तक आप कैलकुलेटर पकड़ोगे, ब्रैकेट्स लगाओगे, आप मेंटल मैथ्स करोगे, तो यू विल फील मच कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंस भी बेहतर होगा, आपका कैलकुलस भी बेहतर होगा। तो दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स वेयर द फर्स्ट टर्म इज 1। नाउ if the first term is not 1, first term is not 1, तो हमको उसको फर्स्ट टर्म को 1 बनाना है। फॉर एग्जाम्पल 4 माइनस 3x का स्क्वायर रूट, दिस इज सी पार्ट। कहता है एक्सपैंड अप टू फर्स्ट 4 टर्म्स। तो एज आई टोल्ड यू फर्स्ट टर्म मस्ट बी 1, तो यहाँ पे चूँकि 4 है तो इसको हम 1 बनाने के लिए द सिंपल वे इज़ व्हाट टेक द फर्स्ट टर्म इफ इट इज़ अदरवाइज 1 एज अ कॉमन, तो दैट विल बी व्हाट 1 माइनस 3 is not exactly divisible by 4, but we will take it as 3/4, और ये बाहर हमारे पास जो है वो इस दोनों का स्क्वायर रूट आ जाएगा। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2, और इसका स्क्वायर रूट जो है वो हम रहने देते हैं 3/4 x, और इसकी पावर इज़ व्हाट 1/2। अगर आप इसको मेंशन करना चाहें तो नो n इज़ व्हाट 1/2 और x इज़ व्हाट -3/4। फार्मूला में हम वैल्यूज़ पुट करते जाते हैं। 1 + nx 1/2 और x इज़ व्हाट -3/4x। नेक्स्ट इज़ n इंटू n - 1
over 2 factorial minus 3 over 4 x raised to power what 2 plus n into n minus 1 into n minus 2 over 3 factorial minus 3 over 4 x raised to power 3। तो ये एक्सपेंशन हम लगा देंगे। देन we will make the simplification. This is positive, this is negative, तो plus minus minus 3 over 8 x, ये हमारे पास जो है जी 1/2 ब्रैकेट minus 1/2 और we'll take the square of it, तो this negative becomes positive, that will be what 19 over 16 x square। और ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर में जो 2 फैक्टोरियल है ये भी 1/2 आ जाएगा। तो सिर्फ देयर इज़ ओनली 1 माइनस, तो देयर फोर ये हमारे पास जो टर्म होगी नेगेटिव रहेगी। दैट इज़ व्हाट 9 over 16 to the 32 64 128 x square। देन हमारे पास ये 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 into 2 into 1, this is what 1/2 minus 1/2 minus 3/2, 2 to the 4, 1 minus 4 is what minus 3/2, और इसका हम क्यूब ले लेंगे तो दैट इज़ व्हाट 27 over 64 x क्यूब, और ये माइनस का ही रहेगा बिकॉज एनी नेगेटिव नंबर विद ऑड पावर विल हैव द फाइनल साइन ऑफ नेगेटिव। और ये हमारे पास 1/6, ये 3 to the 6 जो है। अब हम इसको काट सकते हैं 3 to the 6। अब हमारे पास ये हो जाएगा 64, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 3 माइनस हैं तो ये भी माइनस रहेगा, तो ऊपर 27 होएगा ओवर ये हमारे पास जो है वो 128 256 512 1024 x क्यूब, और ये जो हमने 4 को कॉमन लिया था तो ये हमारे पास 2 साथ साथ आएगा। नो ये हम 2 जो है वो अंदर अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 minus 3 over 4x minus 9 over 64x square minus 27 over 512x cube। So this will be what your final expansion, that is what the final expansion। So this is the example if the first term is not 1, so then how you will solve, I have told you about the solution of the binomial series when the first term is not 1। हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल डी ले लेते हैं। क्वेश्चन ये यूँ भी हो सकता है जैसे 4 over 4 minus 2x plus 3 over 1 plus x square। Question is expand up to x cube या x4 whatever जो भी वो आपसे बोलता होगा। लाइक ये हमारे पास क्वेश्चन है
मैंने आपको बताया कि हम इसको डिनोमिनेटर में ओपन नहीं कर सकते, हमने इसको न्यूमरेटर में लेके जाना है फर्स्ट ऑफ ऑल, बट बिफोर दैट वी हैव टू मेक द फर्स्ट टर्म एज अ 1 माइनस 2/4 करेंगे तो ये 1/2x हो जाएगा, और इस सब की पावर कितनी है 1, प्लस 3 ये ऑलरेडी 1 है, लिहाजा इसके ऊपर जो है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम दोनों को अलग-अलग से एक्सपेंड करेंगे, लेकिन इसकी पावर भी जो है वो कितनी है हमारे पास 1 है। तो जब हम इसको जो है वो न्यूमरेटर बनाएंगे तो ये 4 से कट जाएगा, तो ये रह जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1/2x, और सब की पावर जो है वो कितनी हो जाएगी -1 प्लस 3 टाइम्स 1 प्लस x² रेज टू पावर व्हाट -1। फिर हम दोनों ये जो ब्रैकेट्स हैं इन पर अलग-अलग से बायनॉमियल सीरीज लगाएंगे, तो दैट इज़ व्हाट 1 प्लस nx, n इंटू x इज व्हाट -1/2x प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल इंटू x² प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2 over 3 factorial means 3 into 2 into 1 into -1/2x raised to power what cube। तो ये तो हमारे पास इसकी एक्सपेंशन आ जाएगी। अब इसकी एक्सपेंशन जो है वो इससे आगे ही हम इसको जो है ना वो ऐड कर देते हैं, लाइक प्लस ये इस पर हम ब्रैकेट लगा लें, प्लस 3 टाइम्स 1 प्लस n इंटू x²। और जब हम इसे अगली टर्म लेंगे तो स्केयर का जब स्केयर लेंगे तो वो पावर 4 हो जाएगी, तो हमें 4 नहीं चाहिए, हमने तो क्यूब तक इसको एक्सपेंड करना है, तो लिहाजा इसकी एक्सपेंशन इधर ही स्टॉप कर देंगे। Then we will make the simplification, which is you need to be very much careful when you are simplifying। प्लस माइनस की मिस्टेक आपको जो है ना वो आपका फाइनल आंसर जो है वो ख़राब करेगी, और इतने बड़े क्वेश्चन में मिस्टेक करना आसान है, मिस्टेक ढूंढना मुश्किल है, तो दैट्स वाई यू मस्ट बी वेरी वेरी मच केयरफुल अबाउट दैट कैलकुलेशन। अब ये एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, और इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4x², और ये भी प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस विल बी इक्वल्स टू व्हाट 1/4x²। देन ये 3 इस 3 से कट जाएगा, 2 इस 2 से कट जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, और यहाँ से भी 1 माइनस आएगा, तो ये 4 माइनस हो जाएंगे, तो 1/2x³ लेंगे तो ये 1/8 प्लस 1/8x³, ये हमारे पास इन सब का जो है वो एक्सपेंशन आ जाएगी। इससे आगे जो है वो अभी हमारे पास ये इसकी भी हमने एक्सपेंशन करनी है, प्लस 3 टाइम्स 3 माइनस 3x², ये हमने 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बाहर से जो है वो फिर हम इसको अरेज कर देंगे लाइक दिस प्लस। अब इन ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं फॉर इंस्टेंस, तो 1 प्लस 1/2x प्लस 1/4x² प्लस 1/8x³ प्लस 3 माइनस 3x²। ये अब जो लाइक माइंडेड टर्म्स हैं उनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जैसे 1 और 3 इज़ व्हाट 4, देन ये 1/2x है, और इसके अलावा x की और कोई टर्म नहीं है, तो दैट इज़ व्हाट 1/2x,
1/4x² माइनस 3x², तो 4 3 ज़र 12 माइनस 12 प्लस 1 इज़ वट -11/4x²। और क्यूब वाली भी हमारे पास एक ही टर्म है, तो 1/8x³। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी फाइनल फॉर्म आ जाएगी। यस, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक नंबर का वो पार्ट पूछ लेता है। इसमें वो पूछता है कि फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स फॉर विच एक्सपेंशन इज़ वैलिड। ये हमारे पास फार्मूला है 1 + x⁴n, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 1 + nx plus n into n minus 1 over 2 factorial into x² and so on। तो एक चीज़ वो पूछ लेता है समटाइम्स, क्या फाइंड the set of values of x for which expansion is valid। तो हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास x होगा, कोई भी यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी 2/3x है, 3/2x है, वट जो भी होगी, तो हमने क्या करना है, x मॉड विल बी लेसर देन 1। मॉड का मज़ीद कॉन्सेप्ट जो है वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे मॉडुलस फंक्शंस, इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज़ में। अभी आप सिर्फ ये समझें x मॉड इज़ लेसर देन 1, ये इसकी जो है वो रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x होगी। फॉर इंस्टेंस अगर हमारे पास कुछ यूँ हो 1 - 2/3x raised to power -4, तो हमने क्या करना है, हमने ये जो हमारे पास x है ना, ये इसको हमने उठाना है, माइनस मॉड जो है वो प्लस कर देता है, माइनस को आपने इग्नोर कर देना है, इज़ लेसर देन 1। फिर हम इसको लिख देंगे x मॉड विल बी लेसर देन 3, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x आ जाएंगी। एक और एग्जांपल के साथ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है 3 - 5x raised to power -2 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको 1 बनाएंगे, तो हम जो है वो 3 raised to power -2 विद सेम पावर हम कॉमन ले लेंगे। बल्कि ऐसे करते हैं ना, हम इसमें से 3 कॉमन लेते हैं और ये रह जाएगा हमारे पास 1 - 5/3x, और ये सबकी पावर जो है वो कितनी है हमारे पास -2। दैट्स मीन कि अब ये 2 - 2 इसकी भी पावर है और ये ब्रैकेट की भी पावर है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 3 raised to power -2 ब्रैकेट 1 - 5/3x raised to power what -2। तो ये 1/9 हम इसको लिख सकते हैं 3 raised to power -2 को। अभी हमारे पास इसमें जो है ना वो ज़रूरत नहीं है हमें इसको करने की, हमें सिर्फ जो है ना वो सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x लिखनी है, तो वो हमारे पास जो है वो हमने इसको उठाना है। इसको जब आप उठाओगे तो 5/3x मॉड इज़ लेसर देन वट 1 और x मॉड इज़ लेसर देन 3/5। तो दीज आर द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच एक्सपेंशन इज़ वैलिड। तो होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। आप को कोई भी कन्फ्यूजन हो, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन, और इंशाल्लाह आपको हर किस्म के आपकी प्रॉब्लम का बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है ना वो आंसर दिया जाएगा। तो पहली दफ़ा कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।